Hello everyone. So back to case studies discussion. ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਟੌਪਿਕਸ ਹੈ ਦੇ ਰਿਵੋਲਵ ਅਰਾਊਂਡ ਪੀਪੀਪੀ ਦੀ ਕੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਸਰਵਿਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੋਲ ਰਹੇਗਾ ਪਬਲਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਮਾਡਲ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਮਾਡਲ ਦਾ ਦੈਨ ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ ਸਕੀਮ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੈਲੰਜਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈ what is the role of SDM in scheme implementation ठीक है so these are certain areas we will touch upon plus कुछ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ मैं examples दूंगी in general जो ਤੁਸੀਂ different areas ਵਿੱਚ use कर सकते हो so let us begin the overall topics है some of them will be taking up tomorrow ठीक है so I'll just read these topics first is land acquisition and rehabilitation this is a topic given in your syllabus SDM ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਰਹੇਗਾ in general land ਦੀ acquisition ਵਿੱਚ and rehabilitation ਵਿੱਚ ਕੀ issues ਆਉਂਦੇ ਹੈ second schemes ਦੀ implementation ਵਿੱਚ ਕੀ issues ਆਉਂਦੇ ਹੈ with examples third public private partnership in service delivery fourth natural resources for example water forest ठीक है फॉर एग्जाम्पल ਤੁਹਾਨੂੰ केस स्टडी आई सी ना कि पेस्टिसाइड ਦੇ ओवर यूज करके पोल्यूशन हो रहा है वाटर पोल्यूशन भी सॉइल पोल्यूशन भी ठीक है सो कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ये हो गया देन अगर कोई पीएसयू लॉस मेकिंग है what are the steps you can take to revive that PSU plus are there examples of successful revivals what are those examples so ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ these are your 5 topics right so we'll be a bit quick ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਨ ਹੈਡਿੰਗਸ ਹੋਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੋਣ in the next lesson we will talk about gender sensitization and women empowerment ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ overall approach ਠੀਕ ਹੈ vulnerable sections ਪੰਜਾਬ ਚ ਅਗਰ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਅਰਾਊਂਡ 13 ਤੋਂ 14 vulnerable sections ਬਣਦੇ ਹੈ how we will take up this is हर vulnerable section ਦੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮੇਨ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ vulnerable sections plus ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ vulnerable section ਆ ਜਾਏ ਫॉर एग्जांपल ਯੂ ਆਰ ਦੀ SDM ਉਥੇ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਯੂ ਆਰ ਦੀ SDM ਉਥੇ skewed sex ratio ਹੈ ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ vulnerable section ਆ ਜਾਏ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਅਪਰੋਚ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਨਸਰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਸੋ vulnerable sections then sand mining ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ so these are 3 areas that we will take up tomorrow skill development अपना हो गया है water supply and sanitation हो गया है tourism ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ try writing certain examples for example nature based tourism heritage tourism medical tourism ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਤਿੰਨ areas ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ tourism promote ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ so let us begin land acquisition and rehabilitation ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਡ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਲਈ ਕਿਆ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲਾਅ ਹੈ what are the main provisions of those laws of that particular law plus what are the key issues in land acquisition are there certain examples where acquisition has been cancelled by Supreme Court or upheld by Supreme Court what are those examples ठीक है so let us start which is the act for land acquisition right to fair compensation and transparency in land acquisition rehabilitation and resettlement ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ land acquire ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ rehabilitate ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ resettle ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ in short this is known as LAR Act 2013 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ it will help you in GS as well project planning and assessment this is the first step ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ project ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ identify and assess करो so that minimum ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ displace ਹੋਣਾ ਪਵੇ plus if it is a private project we need 80% consent if it is a PPP project we need 70% consent ठीक है why because we have to ensure participatory land acquisition forced acquisition नहीं करनी है participatory land acquisition करनी है ये first step है second LAR Act ਦੇ ਅੰਡਰ social impact assessment is compulsory ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ social impact ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ there is one thing which you have to take care of social impact ਵਿੱਚ culture ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ especially with regard to tribal groups ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਡੈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ tribal groups displace ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ culture ਵੀ disturb ਹੋ ਰਿਹਾ why because their culture is linked to that particular area
So social impact assessment is mandatory under law, and SIA, how is it done? By using public hearings and also considering cultural factors. Third step, preliminary notification of land acquisition. Fourth, एक बार तुसी एक preliminary notification ਕੱਢਦੇ ਕਿ ਆ land ਅਸੀਂ acquire ਕਰਨਾ ਹੈ. Then detailed land surveys. Finally, proper acquisition जो है तुसी ਉਹਦੀ declaration ਕੱਢਤੀ. Then compensation, very very important. Compensation based on market value of land. ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ land ਦੀ value ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ, ਤੁਸੀਂ assets ਦੀ value ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ. Are there houses on that particular land? Trees ਹੈ, ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੀ ਇਕੋਲੋਜੀਕਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਹਨਾ? ਫॉर एग्जांपल ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨ ਘਾਟਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਏਰੀਆ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਨਾ? ਸੋ that depends. Then rehabilitation and resettlement. You can talk about ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ rehabilitate ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, we have to give them housing and employment. Then जिस एरिया तो लैंड एक्वायर हो रहा है उतो जो लोग है, आर दे वल्नरेबल सेक्शंस? शेड्यूल कास्ट का नहीं है, शेड्यूल ट्राइब्स का नहीं है. अगर है, ग्राम सभा कंसेंट बिकम्स मैंडेटरी. ठीक है. एंड जो भी तुसी रिहैबिलिटेशन ਲਈ मेजर्स लेते हैं ਉਹਨਾਂ ਦੀ पब्लिक तो फीडबैक भी लेनी है. ठीक है. देन कॉम्पेंसेशन दी पेमेंट, अगर रूरल एरिया है 4 times दी मार्केट वैल्यू, अर्बन एरियाज है 2 times दी मार्केट वैल्यू. देन रीसेटलमेंट एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल. ग्रीवेंस रिड्रेसल तुसी हमेशा ही लिखना है, डिजिटल डैशबोर्ड्स दे थ्रू ग्रीवेंस रिड्रेसल हो सकती है. ठीक है. प्रोजेक्ट प्लानिंग, सोशल इंपैक्ट असेसमेंट, प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन, लैंड सर्वे, एक्विजिशन ਨੂੰ डिक्लेयर करना, कॉम्पेंसेशन, रीहैब दा फीडबैक लेना, अगर कोई शेड्यूल ट्राइब एरिया दा ग्राम सभा दी कंसेंट, देन ग्रीवेंस रिड्रेसल. एग्जांपल्स, वेस्ट बंगाल में जो टाटा नैनो दी फैक्ट्री लगनी सी, बिकॉज कंसेंट दे इशू सीगे, सो सुप्रीम कोर्ट कैंसल्ड दैट एक्विजिशन. ठीक है. सो ये तुसी एग्जांपल विच लिख सकते हो. सेकंड, साउथ कोरिया दी कंपनी है पॉस्को, इट्स अ स्टील कंपनी है ना. सो पॉस्को ने ओडिशा विच प्लांट लगाना सी, बट because there was lack of environmental clearance, therefore POSCO had to abandon the project. Now comes role of SDM. तुसी issues देख ले. ठीक है. Then तुसी main जो provisions है LAR Act दियां ਉਹਦੇ through go कर लिया है ना. Now you have to see what are the role of SDM. What is the role of SDM? जो ਤੁਹਾਡਾ सब divisional magistrate है SDM है, often functions as land acquisition officer. और रोल क्या रहता है? सब तो पहला कोऑर्डिनेशन रोल विद डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. ठीक है. विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, अफेक्टेड फैमिलीज. ठीक है. सोशल इंपैक्ट असेसमेंट विच पब्लिक हियरिंग्स करना एसडीएम का रोल है. लैंड रिकॉर्ड्स दी वेरिफिकेशन करना, कोई डिस्प्यूट तो नहीं आ रहा. अगर कोई डिस्प्यूट आ रहा है, एसडीएम फंक्शंस एज अ क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी. ठीक है. नोटिफिकेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस, कॉम्पेंसेशन, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ लीगल हेयर सर्टिफिकेट्स तैयार करना, रिहैबिलिटेशन, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, एसडीएम के रोल विच रहंदा ही है. की इशूज, एसडीएम का रोल देख लेते एक बार. कोऑर्डिनेशन, एसआईए, लैंड रिकॉर्ड वेरिफिकेशन, कॉम्पेंसेशन, रिहैबिलिटेशन, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर. इस तरह के जो टर्म्स है ना, फॉर एग्जांपल लीगल हेयर सर्टिफिकेट्स हो गया या एग्जांपल्स हो गए, ये जरूर ड्रॉप कर दिया करो. दिस शोज कि तुसी उस इशू नाल प्रॉपरली अवेयर हो. नाउ वी कम टू मेजर इशूज की आउंदे लैंड एक्विजिशन विच. सब तो पहला तो थानू जो सब तो प्रोमिनेंट इशू है कॉम्पेंसेशन दा है ना, बिलो मार्केट वैल्यू. ठीक है. देन रिहैबिलिटेशन, रीसेटलमेंट प्रॉपर होनी पौंदी. प्रॉपर लैंड रिकॉर्ड्स, स्पेशली इन ट्राइबल एरियाज, प्रॉपर लैंड रिकॉर्ड्स मिसिंग है. ठीक है. डिजिटाइजेशन नहीं हुई है लैंड रिकॉर्ड्स दी. वी टॉक्ड अबाउट भूमि प्रोजेक्ट इन कर्नाटका या डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम. कंसेंट. ठीक है. ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स या जिन्हों आप रेड टेपिज्म कह देंगे हैं, लीडिंग टू टाइम एंड कॉस्ट ओवररन्स, कि टाइम ही इतना ज्यादा हो जाता है ना, प्रोजेक्ट दे कॉस्ट बढ़ जाते हैं. ठीक है. टाइम एंड कॉस्ट ओवररन्स.
loss of cultural identity among tribal groups. Then जो थोड़ा लार एक्ट है, सी हर तरीके का लैंड अक्वायर नहीं हो सकता. फॉर एग्जाम्पल जो लार एक्ट के अंडर है, मल्टी क्रॉप्ड लैंड, अगर एक एरिया विच मल्टीपल क्रॉप्स है, सो मल्टी क्रॉप्ड लैंड कैन नॉट बी एक्वायर्ड. प्लस इतने पब्लिक पर्पस डिफाइंड है. There are only certain areas, for example, strategic reasons, infrastructure development, urban development. इस तरह के कुछ areas है whereby you can acquire land, ठीक है? But this public purpose clause is misused, ठीक है? Then environmental concerns पौने हैं तुसी. Example, सरदार सरोवर डैम, submergence of villages. So ये थोड़ा हो गया अपना land acquisition which what are the key issues and what is the role of SDM, who often functions as land acquisition officer. Now we come to scheme implementation. A बहुत common topic है, तुसी अपने economics विच भी पढ़िया होना है ना. What are the main issues? इधर विच आपा कुछ examples पावांगे so that your answer looks even more better. ठीक है? First is leakages and corruption. Example PDS. ठीक है? Diversion of funds as well as राशन या जो भी तुसी good provide कर रहे हो. ठीक है? Here you can give example of छत्तीसगढ़. छत्तीसगढ़ ने की कीता है end-to-end computerization of the whole PDS process. So leakages and corruption. Second, जो beneficiaries है उन्हां दी proper targeting नहीं हुंदी, या तो जो authorized नहीं है वो स्कीम विच आ जाते हैं और जो authorized है वो स्कीम तो बाहर हो जाते हैं. This is known as inclusion exclusion errors. ठीक है? For example, अंत्योदय अन्न योजना. Third, रेड टेपिज्म, जो ਤੁਹਾਡੇ एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स है वो साइलोज विच काम कर रहे हैं, इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन वीक है. ठीक है? देन स्कीम्स द इंप्लीमेंटेशन विच इंफ्रास्ट्रक्चर के इशूज आ रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर डिजिटल कोई स्कीम है ना, सो डिजिटल प्रॉपर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ लेटेस्ट है कि बैंकिंग ਤੁਸੀਂ लेके जानी है ना, बट ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ डिजिटल सर्विसेज ਲਈ टैबलेट्स नहीं है. एग्जाम्पल, ठीक है? डिजिटल स्कीम्स की कनेक्टिविटी नहीं है डिजिटली. टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस, रीसेंट एग्जाम्पल इज एमजी नरेगा जिथे हुण अटेंडेंस डिजिटाइज कर रहे हैं. ठीक है? सो बायोमेट्रिक फेलियर्स. देन जो भी फंड्स दिते जाते हैं, यू वुड हैव कम अक्रॉस दिस इन न्यूज़पेपर एज वेल. कदे कदे की हुंदा है ना कि फंड्स दी अंडर यूटिलाइजेशन हुंदी है. ਇਹਦਾ एक एग्जाम्पल है निर्भया फंड. निर्भया फंड दी जिन्नी फंड की एलोकेशन है उस तो कट पैसा यूज हो रहा है. सिमिलरली स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड है. दिस इज अनदर प्रॉब्लम. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, SNA स्पर्श. ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਓਵਰਲੈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਫੰਡ ਦੀ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਕਰਨ ਲਈ देयर इज अ डिजिटल फंड मैनेजमेंट सिस्टम इन इंडिया known as SNA स्पर्श, which talks about just in time releases. ठीक है? कि फटाफट रिलीज करो फंड्स. ਇਹ ਤਾਂ प्रॉब्लम रहती है वन साइज फिट्स ऑल, है ना. ਇਹਦਾ एक एग्जाम्पल अगर देना होवे ਤਾਂ ਕੀ ਦੋਗੇ? अगर लेटस से कि कोई हाउस कंस्ट्रक्शन की स्कीम है, हिली एरियाज विच जो हाउस की कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट आना है वर्सेस जो प्लेन एरियाज विच कॉस्ट आना है, दैट विल बी डिफरेंट. ठीक है? सो वन साइज फिट्स ऑल. नेक्स्ट, सोशल इशूज ਨੂੰ लेके आओ कि कास्ट, जेंडर ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹਿੰਡਰੈਂਸ प्ले करता है स्कीम की इंप्लीमेंटेशन विच. कास्ट का एग्जाम्पल मिड डे मील स्कीम. मिड डे मील स्कीम विच एथिक्स के ऊपर का केस स्टडी आई है कि अपर कास्ट और लोअर कास्ट इकट्ठे बैठ के खाना नहीं खा सकते, है ना. सो कास्ट बायस इन मिड डे मील स्कीम. सिमिलरली विमेन विच तुसी गल कर सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल अगर एमजी नरेगा का प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट हो रहा है ना, एमजी नरेगा विच अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट होंगे है, पॉन्ड्स की डिगिंग, रोड्स की कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा. हुण विमेन की उत्थे से नहीं है प्लैनिंग विच कि किस तरह के प्रोजेक्ट्स ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ अपॉइंटमेंट होनी चाहिए है. ठीक है? सो ये तुसी गल कर सकते हो कि कम्यूनिटी लैवल प्लैनिंग विच विमेन मिसिंग है, आ स्कीम्स का ड्रॉबैक है. ठीक है? दैन ग्रीवेंस रिड्रेसल. सी अगर तुसी गवर्नेंस की भी तैयारी कर रहे हो, देयर आर कुछ एरियाज है जो तुसी पढ़े होने हैं. फॉर एग्जाम्पल एक तो हो गया पंजाब विच राइट टू सर्विसेज एक्ट है.
ठीक है। देन सरकार ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ ਹੈ ਨਾ। देन देयर इज दिस सिटीजन चार्टर ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਸਰਵਿਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਲਈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਹੈ ਸੀਪੀ ਗ੍ਰਾਮਸ ਪੋਰਟਲ। ਇੱਥੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਿਸ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਰਟੀਆਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਜਿਹਾ ਰਿਪਲਾਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਫਰੇਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਰਿਪਲਾਈ ਹਰ ਕੁਐਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ਡ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੋ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਰਿਡਰੈਸਲ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। देयर इज अ स्टीरियोटिपिकल और प्रोफॉर्मा रिप्लाई। केस स्टडीज दिस स्कीम अब बहुत यूपीएससी विच कोट हुंदी है ना, यू मस्ट हैव कम अक्रॉस दिस। ब्राजील की कर रहा है कंडीशनल कैश ट्रांसफर कि तुहानू स्कीम ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜੋ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚਾਈਲਡ ਮੈਰਿਜ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਦਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਇਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਹੈ बोल्सा फैमिलिया इन ब्राजील, ठीक है। एक बोल्सा फैमिलिया स्कीम है कंडीशनल ट्रांसफर। इंडिया विच भी कई स्कीम्स विच कंडीशनल कैश ट्रांसफर है बट नॉट इन ऑल स्कीम्स। सो आ हो गया थोड़े स्कीम्स विच इशू रिवाइज कर लेने। करप्शन एंड लीकेजेस एग्जाम्पल पीडीएस, छत्तीसगढ़ मॉडल, एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी, वीक इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, साइलोज अप्रोच, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स, टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस, एमजी नरेगा कैश अटेंडेंस डिजिटल अटेंडेंस इशूज, डिले इन फंड रिलीज, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ SN स्पर्श ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, जस्ट इन टाइम रिलीजेस, वन साइज फिट्स ऑल एग्जाम्पल हाउस कंस्ट्रक्शन ਦੇ costs, social barriers, caste फॉर एग्जाम्पल मिड डे मील्स, MG नरेगा ਦਾ जेंडर ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ठीक है। जेंडर ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट देयर इज दिस नेशनल लेवल ਤੇ स्कीम है किसान महिला सशक्तिकरण योजना, है ना, महिला किसान सशक्तिकरण योजना। बट इशू की है कि फॉर एग्जाम्पल जो फील्ड्स विच ट्रैक्टर्स है दे आर नॉट वुमेन फ्रेंडली ट्रैक्टर्स। सो केरला गवर्नमेंट की कर रही है कि कम्युनिटी की हेल्प लेके ट्रैक्टर्स जो है उन्होंने वुमेन फ्रेंडली कंस्ट्रक्ट करवा रही है कि छोटे ट्रैक्टर्स हो, स्टीयरिंग मूवेबल होए, है ना। सो केरला का एग्जाम्पल तुसीं लिख सकते हो महिला किसान सशक्तिकरण योजना विच। ग्रीवियंस रिड्रेसल सीपी ग्राम्स, कस्टमाइज्ड रिप्लाई नहीं है, स्टैंडर्ड रिप्लाई है, ठीक है। कंडीशनल कैश ट्रांसफर बोल्सा फैमिलिया ब्राजील। नाउ वी कम टू रोल ऑफ एसडीएम। रोल ऑफ एसडीएम अगेन कुछ कॉमन एरियाज है जो हर जगह यूज होंगे हैं। फर्स्ट इज कोऑर्डिनेशन विद अदर डिपार्टमेंट्स। क्यों? क्योंकि स्कीम्स की कन्वर्जेंस भी करनी होंगी है, कदे कदे ओवरलैपिंग एरियाज होंगे हैं। प्रॉपर टारगेटिंग, वेरिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरीज, फील्ड वेरिफिकेशन, रेगुलर फील्ड विजिट्स, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ गवर्नेंस ਵਿੱਚ पढ़िया होना है सोशल ऑडिट कि कोई भी स्कीम है लेट द पीपल ऑल्सो टेक पार्ट इन टेलिंग यू कि स्कीम कितनी इंप्लीमेंट हुई कितनी नहीं हुई, ठीक है। सो सोशल ऑडिट, ग्रीवियंस रिड्रेसल एग्जाम्पल कनेक्ट पंजाब पोर्टल प्लस SDM also takes up public hearings, जन सुनवाईज, सोशल ऑडिट्स दा आ रहा, ठीक है। देन फंड फ्लो प्रॉपर फैसिलिटेट होए जो ਆਪਾਂ SN स्पर्श ਦੇ अंडर गल ਕੀਤੀ ਸੀ। कम्युनिटी अवेयरनेस एक कॉमन पॉइंट है, हमेशा यूज कर रहे हैं ना। टेक्नोलॉजी आधार, जैम ट्रिनिटी, DBT एग्जाम्पल दे सकते हो। पंजाब स्मार्ट राशन कार्ड्स इंस्टेड ऑफ ब्लू कार्ड्स, ठीक है। रोल ड्यूरिंग डिजास्टर रिलीफ, अगर डिजास्टर है तो उत्थे भी SDM दा स्कीम्स नू इंप्लीमेंट करन दा ज्यादा जिम्मेवारी बच जाएगी, ठीक है। डिजास्टर रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड टॉपिक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एंड इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी। इस टॉपिक में ना फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी कि PPP क्यों चाहिए आपां नू। देन वी विल सी कि PPP दे सक्सेसफुल मॉडल्स की रहे हैं इंडिया विच। थर्ड वी विल टॉक अबाउट मेजर इशूज की है PPP दी इंप्लीमेंटेशन विच, ठीक है। फर्स्ट अगर प्राइवेट सेक्टर आऊगा टेक्नोलॉजी भी लेके आऊगा, ठीक है, एफिशिएंसी एंड क्वालिटी भी लेके आऊगा। फॉर एग्जाम्पल PPP हॉस्पिटल्स अंडर आयुष्मान भारत योजना। नेक्स्ट जो गवर्नमेंट होंगी है दे आर जनरली डेफिसिट बेस्ड,
यानी कि पैसा कट ਹੁੰਦਾ है. So mobilizing the financial resources by sharing of costs. फास्टर प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन. क्यों? क्योंकि प्राइवेट हमेशा की करेगा, आउटकम ओरिएंटेड अप्रोच फॉलो करेगा. ठीक है. सो पीपीपी कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑफन परफॉर्मेंस बेस्ड, सो देयरफॉर छेती इंप्लीमेंट हो जाएंगे. ठीक है. देन टेक्नोलॉजी एग्जाम्पल, पुणे ਦੇ ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम विच प्राइवेट ਦੇ ऑनर ट्रैफिक मैनेजमेंट ਹੋਰ स्मूथ हो गया. ठीक है. देन रिस्क शेयरिंग हो जाती है. एग्जाम्पल्स दिल्ली मेट्रो. ठीक है. इट हैज बिकम कार्बन न्यूट्रल प्लस ठीक तरीके नाल चल रही है. देन इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट. थर्ड सी जो तुहाडा पीपीपी मॉडल है ना, it is mostly successful in case of infrastructure projects. Infra which PPP has contributed a lot, for example, national highways, airports, Delhi Metro, etc. But health and education sector which PPP ਦੇ ਇੰਨੇ models नहीं है, but there are not so many models. One example that you can write is Narayana Health, very important. See, Narayana Health ना एक person ने establish किया जिदे तहत, see how will private earn in case of health. अगर private sector health which services provide कर रहे हैं, it will earn by volume, कि ज़्यादा लोगों ਨੂੰ services provide ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ. High volume, low cost. Cardiac health ਦੇ area ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ clinics and Narayana Health clinics. ज़्यादा लोगों ਨੂੰ provide ਕਰੋ, ਘੱਟ cost ਤੇ provide ਕਰੋ. High volume, low cost. Narayana Health. ठीक है. सो ये health ਦਾ ਤੁਸੀਂ example ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ. Infra ਦੇ examples ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੈ ਹੀ ਹੈ. ठीक है. Key issues. First is PPP is usually used for infrastructure projects. Therefore, the gestation time is quite high. काफी ज़्यादा time लगता है, leading to cost and time overruns. Plus, क्योंकि ज़्यादा time लगता है, अक्सर कदे-कदे government के contracts भी change हो जाते हैं. ठीक है. So, poor project structuring. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? Initially ਤੁਸੀਂ overestimate ਕਰ ਲਿਆ revenue. ਇਹ ਅਕਸਰ tolls ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ. So, over optimistic assumptions. Risk allocation problems, financial constraints. अक्सर banks दे NPAs ਨੂੰ contribute कर दिंदा है. Why? Because over reliance on borrowed funds. Next, regulatory uncertainty. इतने लंबे time ਵਿੱਚ कोई regulation change होगी. ठीक है. Institutional capacity. Government कोल इतना expertise नहीं है कि PPP contracts ਨੂੰ draft कर सके. Then आ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ कि infra ਵਿੱਚ ज़्यादा है, हेल्थ एंड एजुकेशन विच घट है. ठीक है. लास्ट तुसी ना महाराष्ट्र विच देखिया होना है, there are drought prone areas in Maharashtra. Latur is one of them. Latur which there was this PPP project for water. ठीक है. But then there was a backlash कि पानी दी privatization नहीं होनी चाहिए. So profit motive versus public interest. Role of SDM. SDM कोऑर्डिनेशन करेगा बिटवीन व्हाट आ तुसी बड़ा सिंपल डायग्राम तुसी ना अपने आंसर्स विच बना के यू कैन प्रेजेंट अ बेटर स्ट्रक्चर. सो रोल ऑफ एसडीएम कोऑर्डिनेशन बिटवीन प्राइवेट पार्टनर, जो भी डिपार्टमेंट है, हेल्थ, एजुकेशन, लाइन डिपार्टमेंट्स एंड लोकल कम्युनिटी. मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन. किस चीज दी मॉनिटरिंग? परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स दी. ग्रीवेंस रिड्रेसल, फंड फ्लो. ये बड़े कॉमन टॉपिक्स है, कॉमन पॉइंट्स है एसडीएम दे. Fund flow, ensuring transparency and accountability, law and order, community awareness in local languages, crisis management. Next issue है ਤੁਹਾਡਾ fourth issue, conservation of natural resources. ठीक है. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਣੀ ਦੀ conservation ਆ ਗਈ, forests ਦੀ conservation ਆ ਗਈ. So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ we can talk about certain environment ਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ examples ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ. So ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ. पंजाब की केड़ी स्कीम है फॉरेस्ट ਨੂੰ लेके? ग्रीनिंग पंजाब. ठीक है. वाटर ਨੂੰ लेके पैसा कमाओ, है ना. सो फर्स्ट इशू जो सी रिसोर्सेज दा मेन इशू की है ओवर एक्सप्लॉयटेशन. ओवर एक्सप्लॉयटेशन चाहे वो फॉरेस्ट दी होए, टिम्बर वगैरह दी, या ग्राउंड वाटर दी होए. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल 62% ऑफ ग्राउंड वाटर इन पंजाब इज कंटेमिनेटेड विद यूरेनियम एंड groundwater rate extraction of Punjab is
156%, ठीक है। ਮਿਨਰਲਸ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਇੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫੋਰੈਸਟ ਕਵਰ 2001 ਤੋਂ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ 1 ਲਗਭਗ 1.5%, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਇੱਕ ਨਾ ਤੁਸੀਂ এনवायरमेंट ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स, ये यूज कर सकते हो। ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स की है कि कोई भी कॉमन एरिया है, फॉर एग्जांपल शहर दा पार्क है, किसी दी प्राइवेट दा एरिया नहीं गा हुण, क्योंकि किसी दा प्राइवेट एरिया नहीं गा, पीपल डू नॉट केयर अबाउट इट, ठीक है। सो ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स इन नेचुरल रिसोर्सेज लई काफी लागू हुंदा है, ठीक है। फर्स्ट इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन, नेक्स्ट अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ओवर यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, pollution and environmental degradation, example बुड्ढा नाला, climate change, population pressure, for example पंजाब दे wetlands ਦਾ ਤੁਸੀਂ example ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। कांजली wetland has seen nearly 50% drop in bird visits, ठीक है। plus पंजाब has lost 8 wetlands in 3 decades। और अगर ਤੁਹਾਨੂੰ wetlands ऊपर क्वेश्चन आਉਂਦਾ है which is a very important topic for your environment, पंजाब दे wetlands दा main degradation दे कुछ कारण है। फर्स्ट है सिल्टेशन, कि लैंड जो है वो अर्बनाइजेशन और एग्रीकल्चरली यूज हो रही है, लीडिंग टू सिल्टेशन। नेक्स्ट वेटलैंड्स दे अराउंड जो एग्रीकल्चर फील्ड्स है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। एग्जाम्पल लुधियाना बुड्ढा नाला दे करके थोड़े हरीके वेटलैंड्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, ठीक है। नाउ वी कम टू रोल ऑफ एसडीएम। फर्स्ट था एक्ट्स दी इंप्लीमेंटेशन, जो भी थोड़े एनवायरमेंटल एक्ट्स है, ईपीए, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल एनजीटी ने एसडीएम्स ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨ ਲਈ, ठीक है। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਲੀਗਲ ਬੋਰਵੈਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿਓ, एनवायरमेंटल कॉम्पेंसेशन, ठीक है। देन लैंड एंड फॉरेस्ट यूज ਨੂੰ मॉनिटर करना, you can talk about drones ਦਾ use, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट प्लस लोकल लेवल ਤੇ अगर कोई वाटरशेड मैनेजमेंट ਦਾ प्रोजेक्ट चल रहा है ਉਹਨੂੰ सपोर्ट करना, पोल्यूशन कंट्रोल, कम्युनिटी एंगेजमेंट इन लोकल लैंग्वेजेस, व्हाट्सएप ग्रुप्स, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट। देन एक छोटा सा मैं साइड पे टॉपिक लिखा सीगा कि यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन। अगर कोई प्राइवेट जो कंपनी है किसी पर्टिकुलर लैंड ਨੂੰ एक्वायर करती है फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, और अगर उत्थे फॉरेस्ट की डिस्ट्रक्शन हुंदी है, they have to do compensatory afforestation, right? But compensatory afforestation which issues की है, the first issue is कि जो लोकल इकोलॉजी है जिस तरह की पहला सीगी उस तरीके की सेम इकोलॉजी क्रिएट नहीं हो पाती। वाई? बिकॉज कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन विच मेनली मोनोकल्चर सेम तरीके की ट्रीज ਨੂੰ ग्रो किया जाता है, ठीक है। देन जो लैंड तुसी कंपेंसेटरी फॉरेस्टेशन ਲਈ प्रोवाइड करते हो दैट इज फ्रेगमेंटेड, कंटिन्यूअस लैंड नहीं होता, ठीक है। प्लस लो फंड यूटिलाइजेशन। लास्ट टॉपिक जो अज दा है दैट इज अगर कोई पीएसयू लॉस मेकिंग है, व्हाट आर दी स्टेप्स दैट यू कैन टेक टू रिवाइव दैट पीएसयू। ये बहुत सिंपल है, ये कुछ खास नहीं है, बस कुछ एग्जांपल्स लिख दियो। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ते कोल इंडिया लिमिटेड, ये सक्सेसफुल रिवाइवल दे एग्जांपल्स है। स्टेप्स देख लेने हैं। फर्स्ट इज असेस करो कि पीएसयू विच लॉस क्यों हो रहा है। इज इट बिकॉज ऑफ ऑपरेशनल रीजंस कि जो उन्होंने डे टू डे ऑपरेशन है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ इशू है, या फाइनेंशियल ऑडिट की कमी है, फाइनेंशियली कुछ इशूज है, या मैनेजरियल लेवल पे कुछ इशूज है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिव्यू व्हाट इज द इशू, अकॉर्डिंगली यूज द टूल्स, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल ऑडिट। फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग, गवर्नमेंट कैन हेल्प वाया रिकैपिटलाइजेशन और कन्वर्टिंग डेट इनटू इक्विटी। थर्ड, ऑपरेशनल लेवल पे काम करना, ठीक है, मॉडर्नाइज टेक्नोलॉजी सो दैट थोड़े जो रोजाना के प्रोसेसेस है वो स्मूथ हो जान। सप्लाई चेन एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक रीस्ट्रक्चरिंग। कोई भी पीएसयू है, ये कुछ कोर एसेट्स होंगे,
ਕੁਝ ਨੌਨ ਕੋਰ ਐਸੈਟਸ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਜੋ ਨੌਨ ਕੋਰ ਐਸੈਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲ ਕਰਕੇ ਯੂ ਕੈਨ ਮੋਨੇਟਾਈਜ਼ them, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਸ PSU ਦੀ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡਰੀ ਹੈ ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਮਰਜ ਦੋਸ ਸਬਸਿਡਰੀਜ਼। ਇਹ ਆਪਾਂ ਬੈਂਕਸ ਲਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਬੈਡ ਬੈਂਕ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਅਗਰ वर्कफोर्स ज्यादा है यू कैन रैशनलाइज दैट वर्कफोर्स। स्किल डेवलपमेंट, देन नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दो, नए सर्विसेज लॉन्च कर दो, या फिर नवी मार्केट्स नु टारगेट करो, ठीक है। देन कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिफॉर्म्स एंड टैक्स रिफॉर्म्स। एग्जांपल्स BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, ये सक्सेसफुल रिवाइवल दे एग्जांपल्स है। BHEL ने किवें रिवाइव कीता? एक्सपोर्ट मार्केट्स ते फोकस करके। कोल इंडिया लिमिटेड ने किवें कीता? मैन पावर नु रैशनलाइज करके। ये कुछ बड़े सिंपल से एग्जांपल्स है जो तुसी एज एंड व्हेन पॉसिबल यूज कर सकते हो। अगर तुहानू कोई माल न्यूट्रिशन का इशू GS विच आउंदा है ना, वी टॉक्ड अबाउट डबल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन, सो आंगनवाड़ीज दे विच ही न्यूट्रिशन गार्डन्स ग्रो कर सकते हो, ठीक है। देन डिफरेंटली एबल्ड, अगर PWD का क्वेश्चन आता है विच इज अ वल्नरेबल सेक्शन इन पंजाब, यू कैन टॉक अबाउट कि उन्होंने तुसी अक्सर कई सिटीज विच देखा भी होना है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ कैफे इन दिल्ली जिथे जो विजुअली इंपेयर्ड लोग है दे आर दी उथे वेटर्स, दे आर दी वेटर्स देयर, राइट। सो इंक्लूजन रन कैफेज। हेल्थ लई मोबाइल क्लिनिक्स, बाइक एम्बुलेंसेस, ठीक है। देन just like there is an initiative whereby MP or MLA adopts a village, similarly Sikkim started an initiative whereby the district administration adopts a village to serve as a model village. So a लिख सकते हो तुसी। So that's it friends। ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ sand mining, gender sensitization and vulnerable sections the issue. So these three topics will be taking up in the next video. So thank you so much।